हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी ऑडिट। ये आपके पेपर 6 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस का पार्ट है। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें। मैं ऑनलाइन टीचिंग में थोड़ा सा नया हूँ। हो सकता है आपको वीडियो में वॉइस का या टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस आ सकते हैं, बट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ओवर द नेक्स्ट couple of the days. Concept classes is a basically focused class on CA, foundation, intermediate, and final relevant courses. Currently, the series is running on the Group 2 Paper 6 of CA Intermediate, which is Auditing and Assurance. And today's topic is Chapter 10, which is Company Audit. You can subscribe to our channel for getting the regular update on the different topics which we keep on publishing on a regular basis. And please share the videos with your friends and colleagues so that they can also get benefited out of this process. Uh, Today's topic, what we are gonna do is we are going to cover it again based on the ICI study module. Why? Because that's where the overall, this is the base of the expectation from the ICI, and we would love to continue with the same. Though there are several study books are available outside of this material also, but ultimately they all will circle back, and the question paper which we are trying to resolve will be coming from this particular. What we can expect as part of this video, we can expect a quick revision of the entire chapter 10, which is companies audit, and I will be walking you through the different concept, how we can correlate the different topics which are available within the this particular chapter, and how to respond to that. Okay, so basically कंपनी ऑडिट जो है वो सेक्शन 139 से लेकर 148 तक कवर करता है आपका। एंड इसमें हमारे जो सीक्वेंस रहने वाला है, व्हाट ऑल द डिफरेंट टॉपिक्स इट विल कवर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, it will cover the rules related to the rotation of the auditor, audit committee, auditor's remuneration, removal of the auditor, what is the ceiling limit in terms of the number of audit which an auditor can perform, what are the powers which are inferred into the auditor, and duties of an auditor during the audit and during the engagement basically. Audit report as per Companies Act 2013, जॉइंट ऑडिट के बारे में बात करेंगे और ब्रांच ऑडिट के बारे में बात करेंगे एंड कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात करेंगे एंड फाइनली विल टच बेस अपॉन द पनिशमेंट फॉर द नॉन कंप्लायंस। चलिए देख लेते हैं। बेसिकली जो मैंने आपको बताया था 139 से लेके 148 तक के सारे टॉपिक्स को इसमें हम कवर करेंगे। एंड 139 जो है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर है सेक्शन। 140 बात करता है रिमूवल, रेजिग्नेशन and giving of a special notice. 141 बात करता है eligibility, qualification, disqualification of the auditor, remuneration of the auditor, and 143 will talk about your powers and duties of the auditors and auditing standards. 144 में जो limiting services हैं, there are certain services which auditor are not supposed to render to their engagement organization जब वो audit कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड देन फाइनली 145 में ऑडिट रिपोर्ट सिग्नेचर के बारे में बात करेंगे। 146 इज टॉकिंग अबाउट द अटेंडिंग द जनरल मीटिंग्स। 47 पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशंस है। एंड देन 148 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज जो है सीजीयू के बारे में कंट्रोल डिस्क्राइब करता है। सबसे पहली बात हो सकता है हम सीक्वेंस में 139 से लेकर 148 तक ना जाए, हम लॉजिकल ग्रुपिंग में जाएंगे। जैसे हम लोग शुरुआत करने वाले, सबसे पहले कोई भी एक ऑडिट अगर होती है तो सबसे पहले हमें ऑडिटर्स को लेके आना होता है। और अपॉइंटमेंट से पहले हमें क्या देखना होता है? हमें देखना होता है उनकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, व्हाट आर देयर क्वालिफिकेशन एंड वेदर आर देयर एनी ग्राउंड्स ऑन व्हिच दे कैन गेट डिस्क्वालिफाइड। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 141 से शुरुआत करेंगे। क्या क्या टॉपिक्स या क्या क्या मेन प्रोविजंस हैं इसके, वो देख लेते हैं। ऑडिटर का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है ना, शेल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी। अच्छा, कोई फर्म है जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर जो है वो प्रैक्टिसिंग इन इंडिया है एंड तो वो क्वालिफाइड हो जाते हैं अपॉइंटमेंट के लिए बाय इट्स फर्म नेम।
ओके, तो फर्म के नाम से भी हम अलोकेट कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है इसमें। यहाँ पे जो सवाल हम आंसर करने की कोशिश करेंगे, एम आई एलिजिबल, सो वही हम इसमें रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, फर्म है जिसके अंदर एलएलपी भी इंक्लूड है, तो जो पार्टनर्स उस फर्म के हैं विच आर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वही जो है सिर्फ ऑथोराइज्ड होंगे किसके लिए, ऑडिट करने के लिए, और सिग्नेचर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म फॉर द ऑडिटिंग। कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, एडवोकेट्स भी हो सकते हैं, या अदर पार्टनर्स भी हो सकते हैं फर्म या एलएलपी में, और हमें इंश्योर करना है कि जो ऑडिट में ये जो ऑथराइजेशन एंड सिग्नेचर है वो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अवेलेबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाले जो सेक्शन 141 है, सबसेक्शन 3 जो है ना, इसमें क्या कहता है? ये कहता है कि भाई शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। कौन नहीं कर सकता है? बॉडी कॉर्पोरेट, है ना, एलएलपी और फर्म जो है 2008 एक्ट में जो रजिस्टर्ड है, उनके अलावा अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट है वो नहीं कर सकता है। कंपनी का कोई ऑफिसर या एम्प्लॉय है वो ऑडिट नहीं कर सकता है, ठीक है। अच्छा, ए पर्सन हु इज ए पार्टनर और हु इज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो वो भी ऑडिट नहीं कर पाएगा। अगर कोई पर्सन जो रिलेटिव है या पार्टनर है, अगर कोई आदमी जो है वो अगर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी इज होल्डिंग, इज नॉट एलिजिबल टू कंडक्ट द ऑडिट। अच्छा, रिलेटिव्स जो हैं दे में होल्ड सम सिक्योरिटी, है ना, उसके लिए फेस वैल्यू कहाँ लिमिट किया हुआ है? 1 लाख रुपीज पे, ठीक है। अच्छा, कंडीशन ऑफ 1 लाख कहाँ पे है? वो शेल बी एप्लीकेबल इन द केस ऑफ ए कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल और अदर सिक्योरिटीज, ठीक है। तो इन वाली कंपनीज के केस में भी 1 लाख का लिमिट जो है एप्लीकेबल रहेगा। अच्छा, अब हम मान लीजिए कि भाई whenever you have acquired any security or interest by relative, है ना, above the threshold, तो हमें जो उसकी लिमिट्स को मेंटेन करना है, shall be taken up within 60 days of such acquisition or interest। ये हमें ध्यान रखना है, within 60 days we should comply with these two particular limits। अच्छा, इसमें कुछ स्पेसिफिक्स भी हैं, जैसे कि जो 1 लाख की लिमिट है वो फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो रिलेटिव के केस में हम लोगों ने 1 लाख का लिमिट डाला हुआ है वो फेस वैल्यू की बात कर रहा है। तो हो सकता है एक शेयर जो है वो 10 रुपए का है फेस वैल्यू, और उसकी मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपए हो सकती है। तो हमको क्या देखना है? हमें फेस वैल्यू देखना है, ना कि हमें उसका मार्केट वैल्यू। चलिए, अगर हम देखेंगे भाई ये जो है ये 1 लाख की लिमिट किसके लिए है? रिलेटिव के लिए है ना। ऑडिटर के केस में तो स्मॉल वैल्यू भी है, तो वो भी डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बन जाएगा। हम लोग इस केस में ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव के केस में है, ऑडिटर के केस में नहीं। अच्छा, 60 दिन का जो ग्रेस पीरियड है वो किसके लिए? वो भी रिलेटिव के लिए ही है, ऑडिटर या उसके पार्टनर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब बताइए रिलेटिव कौन कह सकते हैं? अच्छा, रिलेटिव कहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एचयूएफ का मेंबर हो, है ना, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, फादर इंक्लूडिंग योर स्टेप फादर, मदर इंक्लूडिंग द स्टेप मदर, इंक्लूडिंग योर मदर, स्टेप मदर, है ना, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर एंड सिस्टर। तो ये मान लीजिए अभी एक एग्जांपल अगर कोट करें हम इसमें, तो लेट्स सी, मान लीजिए ये आपके फादर है, ये आपकी मदर है, राइट, यहाँ पे आप हैं, यहाँ आपके सन है, यहाँ पे डॉटर है, राइट, एंड यहाँ पे जो है उनके स्पाउस है, राइट, सन्स वाइफ एंड डॉटर्स हस्बैंड। ये मान लीजिए सन है और ये हमारा डॉटर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपके सिस्टर है और यहाँ पे आपके ब्रदर है। इन सबके केस में आपके स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर आर आल्सो इंक्लूडेड। अच्छा, सन के केस में स्टेप सन भी इंक्लूडेड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी? यहां तक हमने बात कर लिया है। अच्छा,
अगर जो ऑडिटर है indebted to the company or its subsidiary or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company in excess of 5 lakh, right? तो भी वो ineligible हो जाएगा. अच्छा, has given a guarantee or provided any security in connection with the indebtedness or any third person to the company or its subsidiary or its holding or associate company or a subsidiary of such holding company in excess of 1 lakh rupees, तो भी वो जो है ineligible हो जाता है. ठीक है. जहां भी हमारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशनशिप है विद द कंपनी, उसमें सब्सिडरी भी इंक्लूड होते हैं, होल्डिंग कंपनी भी इंक्लूड होगी, एसोसिएट कंपनी भी होगी और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी भी होगी, है ना, या एसोसिएट कंपनी भी होगी, तो वहां पे भी इनएलिजिबल हो जाता है. बिजनेस रिलेशनशिप किसको बोल सकते हैं? कमर्शियल ट्रांजेक्शन, है ना, नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज परमिटेड टू बी रेंडर्ड बाय एन ऑडिटर और ऑडिट फर्म अंडर द एक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे अलाउड है. अच्छा, दूसरा एक आर्म्स लेंथ प्राइस पे अगर कोई है ट्रांजेक्शन, तो वो भी परमिटेड है. आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन क्या होता है? बेसिकली आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन ये है कि आप नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई 100 रुपए की चीज है, आप किसी दूसरे व्यक्ति को भी 100 रुपए में देते हैं, तो उस केस में अगर ऑडिटर आपके पास से वो ट्रांजेक्शन लेता है तो उसे भी आप 100 रुपए चार्ज करें, तो दैट इज कॉल्ड एज आर्म्स लेंथ प्राइस. जैसे आप हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल को डिस्काउंट नहीं मिला, नॉर्मल जो रेगुलर पेशेंट के साथ ट्रीटमेंट होता है वही आपने ऑडिटर के साथ किया. अगर आपका फ्लाइट है तो आप फ्लाइंग सर्विस में जैसे नॉर्मल कस्टमर्स को डील करते हैं, उसी प्रकार से अगर आपने डील किया है, होटल्स के केस में हो गया, तो यहाँ पे इन वाले ट्रांजेक्शन को हम आर्म्स लेंथ प्राइस के कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं. अच्छा, कौन एलिजिबल नहीं है? अगेन नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं. पर्सन हुज रिलेटिव इज ए डायरेक्टर, है ना, आर इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ऐसे डायरेक्टर आर केएमपी, तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा. चलिए, ए पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, तो वो भी. आर ए पर्सन आर ए पार्टनर ऑफ ए फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर, इफ सच पर्सन आर पार्टनर एट द डेट ऑफ सच अपॉइंटमेंट आर रीअपॉइंटमेंट holding appointment as auditor of more than 20 companies other than one person companies, है ना, dormant companies, small companies and private companies having paid up share capital less than 100 crore. तो यहाँ पे सीलिंग का एक पॉइंट बता दिया है इन लोगों ने. क्या पॉइंट बता दिया है? चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से थोड़ा क्लैरिटी के लिए आपको. तो यहाँ पे बताया गया है कि सबसे पहली बात की मोर देन 20 कंपनीज को होल्ड नहीं करना है. 20 कंपनीज में क्या इंक्लूडेड नहीं है? 1 पर्सन, आपकी ओपीसी इंक्लूडेड नहीं है, डोरमेंट कंपनीज इंक्लूडेड नहीं है, स्मॉल कंपनीज इंक्लूडेड नहीं है, प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है वो इंक्लूडेड नहीं है. इसके अलावा जो भी कंपनीज होंगी वो आपके इसमें काउंट में आ जाएंगी. ठीक है जी. तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी का अगला क्राइटेरिया हमने बात कर लिया है. अच्छा, अगर कोई कोर्ट से कन्विक्ट हो चुका है ना, ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड a period of 10 year has not elapsed from the date of such conviction, 10 साल का कूल ऑफ पीरियड यहाँ पे डाला गया है फ्रॉड से, कि कन्विक्शन से 10 साल का जो है खत्म नहीं हुआ है, तो वो आदमी जो है ऑडिटर नहीं बन सकता है. अच्छा, 144 में कुछ सर्विसेज है सेक्शन, आगे हम देखेंगे उस चीज को भी. मगर अगर कोई व्यक्ति ये वाली सर्विसेज रेंडर कर रहा है, कौन सी, जो सेक्शन 144 में आएंगे, चलिए अभी एक बार क्विकली दिखाई देता हूँ मैं आपको. यहाँ देखिए कौन कौन सी सर्विसेज है वो. अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, है ना, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FIS फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्चुअरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मैनेजमेंट सर्विसेज. राइट. सो इनमें से ये टोटल 8 सर्विसेज हमारी हैं. 1 2 3 4 5 6 7 और 8. इन 8 सर्विसेज को अगर कोई रेंडर करता है तो वो जो है सेक्शन 144 के केस में एलिजिबल नहीं रहेगा, है ना. चलिए आगे जाते हैं. अच्छा, wherever a person appointed as an auditor of a company incurs any of the disqualification mentioned in the subsection 3, after his appointment he shall vacate his office as such auditor and such vacation shall be deemed to be a casual vacancy. अगली बात आ गई है क्या? कैजुअल वैकेंसी की बात कर रहे हैं अब हम. तो कैजुअल वैकेंसी क्या होती है भाई? अगर 141(3) में ये सारे जो टॉपिक्स हैं अपॉइंटमेंट बात जो हमने भी बात की है, राइट,
ये सारे जो टॉपिक्स की हमने बात की है, डिस्क्वालिफिकेशन के जो डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं, राइट, ये वाले अगर ये अपॉइंटमेंट के बाद पता लगते हैं तो बंदा जो है उसको वेकेट करना पड़ेगा अपना ऑफिस, राइट, एज ए ऑडिटर। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में वो जो वैकेंसी कहलाती है उसको कैजुअल वैकेंसी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लिए कैजुअल वैकेंसी के बारे में, हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके पहले चलिए हम देख लेते हैं ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट। अच्छा भाई, हमने एलिजिबिलिटी देख ली, हमने क्वालिफिकेशंस देख ली कि बंदे को सीए होना चाहिए, उसका डिफरेंट क्राइटेरिया रिलेटिव्स के कॉन्टेक्स्ट में, उसकी होल्डिंग सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमने देख लिया उसको, राइट, एंड देन फर्म एंड एलएलपी के कॉन्टेक्स्ट में उसको समझ लिया। अभी ठीक है, चलिए 139 में हम ऑडिटर को अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो बात करेगा वो क्या करेगा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करेगा। ऑडिटर्स दो तरह के अपॉइंट होंगे। पहला कौन सा होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। जिस कंपनी का कौन सा बिजनेस शुरू होता है सबसे पहले हमको एक ऑडिटर्स अपॉइंट करने होते हैं, एंड देन सब्सिक्वेंटली हमको ऑडिटर्स को ऑन ए ऑनगोइंग बेसिस हम लोगों को उनको असाइन करना होता है। तो चलिए देखते हैं क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, है ना। गवर्नमेंट कंपनी से डिफरेंट अगर कोई कंपनी है, राइट, अदर देन है गवर्नमेंट कंपनी अगर है तो उसको कैसे करना है। 139(6) इसका क्लॉज नंबर है, नोट कीजिएगा इसको, है ना। फर्स्ट ऑडिटर ऑफ ए कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी शेल बी अपॉइंटेड बाय बीओडी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तीन चीजें यहाँ पे निकल के आई हैं। कौन कौन सी तीन चीजें निकल के आई हैं बताइए जरा। यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई हैं हमारी। सबसे पहले लेट मी ब्रिंग आउट द हाइलाइटर। कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। कितने दिन में करेगा, विद इन 30 days में करेगा। कहां से, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से, ठीक है। ये अगर नहीं कर पाते हैं तो इन केस ऑफ फेलियर ये क्या करेगा, इट शेल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी कि भाई हम लोगों से नहीं हो पाया है ना। तो मेंबर्स क्या करेंगे, विद इन 90 days एट ए एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग दे विल अपॉइंट द ऑडिटर, ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, कितने दिनों में करेंगे, 30 दिनों में करने की कोशिश करेंगे। कहां से 30 दिन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी से 30 दिन। उनसे नहीं हो पाता, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट द ऑडिटर, what they will do, they will intimate to the members of the company and members of the company shall within 90 days क्या करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे, ठीक है जी। वहां से क्या होगा, अपॉइंटेड ऑडिटर जो भी फर्स्ट ऑडिटर है वो कब तक होल्ड करेगा ऑफिस को, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, तब तक उसके लिए वैलिड रहेगा। वेरी गुड। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी है तो भाई क्या करेंगे, तो पहले बताया गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है। गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सीजी, एसजी, or governments are partly by the CG and partly by one or more state governments, right? And this includes a company with a subsidiary company of such a government company. तो ये वाला टॉपिक है कि आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक आप पढ़ के जाइएगा। डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपनीज लॉ में, आपने पढ़ा होगा, राइट, कि 1% कंपनी क्या होता है, स्मॉल कंपनी क्या होता है। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, हल्का सा खांसी शुरू हो गया है, शायद ठंड की वजह से, तो इस वजह से थोड़ा सा, प्लीज बी हियर विद मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से हमने कहा कि भाई गवर्नमेंट कंपनी है जिसका 50% ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या स्टेट गवर्नमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, राइट, और उसमें सब्सिडरी कंपनी ऑफ ऐसी गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो इंक्लूडेड, ठीक है जी। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें फर्स्ट ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड बाय द सीएजी। सीएजी कौन होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कितने दिनों में करेगा, 60 दिन में करेगा। कहां से, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी से। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी केस में क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। कितने दिन में करेंगे, 30 दिन में करेंगे। कहां से करेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से करेंगे। वो नहीं कर पाते हैं तो मेंबर्स को इंटीमेट करेंगे। मेंबर्स क्या करेंगे, मेंबर्स जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग विद इन 60 days में ऑडिटर्स को विद इन 90 days में, सॉरी, विद इन 90 days में ईजीएम में अपॉइंट कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है,
गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन करेगा? सीएजी करेगा। कितने दिन में करेगा? 60 डेज में करेगा। कहां से 60 डेज? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी से 60 डेज। ठीक है जी। अच्छा, इसमें सीएजी फेल हो गए, है ना, उन्होंने अपॉइंट नहीं किया ऑडिटर को विद इन दैट पीरियड, तो क्या हो सकता है? बीओडी जो होता है वो दे कैन अपॉइंट इन नेक्स्ट 30 डेज। कहां से नेक्स्ट 30 डेज? यहां से 60 डेज के क्राइटेरिया से, है ना। सो मान लीजिए रजिस्ट्रेशन डेट है यहां से 60 डेज और यहां से 30 डेज, ठीक है। सो ये जो है ये इसका टाइमलाइन चार्ट हो जाएगा। अच्छा, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द बोर्ड टू अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन नेक्स्ट 30 डेज, चलिए भाई इनसे भी ना हो पाया तो क्या करेंगे? तो ये फिर से मेंबर्स को इंटीमेट कर देंगे एंड दे विल अपॉइंट द ऑडिटर विद इन 60 डेज at an extraordinary general meeting and auditor shall hold office till the conclusion of the first AGM। तो क्या डिफरेंस हो गया है यहाँ पे? देखिए जरा एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको क्विकली। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, विद इन 30 डेज करेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से करेंगे। उनसे नहीं हो पाता है तो दे विल इंटीमेट द मेंबर्स एंड मेंबर्स विद इन 90 डेज क्या करेंगे? EGM एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे एंड अपॉइंटेड ऑडिटर विल होल्ड द टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट AGM, राइट। गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या होगा? गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी अपॉइंट करेगा। कितने दिन में करेगा? 60 डेज में करेगा। कहां से 60 डेज? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से 60 डेज। अच्छा, सीएजी से ना हो पाया तो उस केस में सीएजी कहेगा भाई हमसे ना हो पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होंगे वो अपॉइंट करने की कोशिश करेंगे। कितने दिनों में? 30 दिनों में। कहां से 30 दिनों में? जहां से सीएजी का पीरियड खत्म होता है वहां से 30 दिनों में, ठीक है। अच्छा, बोर्ड से भी ना हो पाया अगले 30 दिनों में तो क्या करेंगे भाई? मेंबर जिंदाबाद, मेंबर्स को जो है अगले 60 दिनों में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में जो है ऑडिटर्स को अपॉइंट करना होगा। और वो ऑडिटर कब तक रह सकता है जो अपॉइंटेड है? फर्स्ट AGM तक दे कैन होल्ड द ऑफिस। चीजें समझ में आ रही हैं उम्मीद कर रहा हूं, है ना। तो ये हमने फर्स्ट वाली बात कर ली टॉपिक की। अच्छा चलिए दूसरी बात कर लेते हैं कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स जो AGM हो गया वहां पे कैसे करने वाले हैं, है ना। अच्छा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, दो केसेस की बात कर रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट कंपनी का केस हो रहा है और एक हमारा नॉन गवर्नमेंट कंपनी का केस हो रहा है ना। तो हम उसी सिलसिले में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए तो अपॉइंटमेंट की बात करते हैं यहाँ पे कि सब्सिक्वेंट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैसे करेंगे, ठीक है। एवरी कंपनी एट इट्स फर्स्ट AGM, है ना, अपॉइंट करेगा किसको? एक इंडिविजुअल को या एक फर्म को। फर्म के बारे में हमने बात कर लिया था ऊपर, है ना। Is an auditor who shall hold office from the conclusion of that meeting till the conclusion of its 6th AGM। तो फर्स्ट AGM से 6th AGM तक, है ना, ये देखिए। एंड देयर आफ्टर एवरी 6th, ठीक है। तो ये सीरीज हमारा चलता चला जाएगा। इवेंचुअली 1 से 6 के बीच में क्या हुआ? 5 साल होते हैं मोटे मोटे, है ना। दैट्स व्हाट वी हैव टू सी, 5 साल ऑफिस होल्ड करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं? कुछ टॉपिक्स बताए गए हैं तो उन टॉपिक से ऊपर हम बात कर लेते हैं। बिफोर सच अपॉइंटमेंट इज मेड, रिटन कंसेंट हमें चाहिए। किसका चाहिए? ऑडिटर का, है ना। और एक सर्टिफिकेट भी लेना है उससे, है ना, कि भाई जो ये सर्टिफिकेट में लिख के दीजिए हमको कि आप जो सारी प्रिस्क्राइब कंडीशन है उनको क्वालिफाई करते हैं, आप इनएलिजिबल नहीं है, ठीक है। जो अगली पॉइंट की बात कर रहा है, ऑडिटर सेटिस्फाई द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड इन सेक्शन 141 जो अभी मैंने बात किया था आपसे थोड़ी देर पहले, है ना। मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि आपको क्राइटेरिया रिकॉल करने में इजी हो जाएगा, राइट। ये 141 के क्राइटेरिया, ये सारे डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया नहीं होने चाहिए एंड देन द ऑडिटर शुड बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द क्वालिफिकेशंस, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कंपनी शेल इन्फॉर्म द ऑडिटर कंसर्न ऑफ इट्स अपॉइंटमेंट। फर्म अगर होगी तो इट्स आ जाता है, या इंडिविजुअल है तो हिज आ जाता है। हिज है तो हर भी इंक्लूडेड है, आपका जनरल कॉन्ट्रैक्ट लॉस में आपने पढ़ा होगा, जनरल क्लॉजेस में, ठीक है। अच्छा, एंड आल्सो फाइल इन नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद द रजिस्ट्रार विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग इन विच द ऑडिटर इज अपॉइंटेड, ठीक है।
तो ये इसको गौर करने वाली बात है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका फाइलिंग करना है किसके साथ, रजिस्ट्रार के साथ। कितने दिनों में, विद इन 15 days ऑफ द मीटिंग इन विच द ऑडिटर इज अपॉइंटेड। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है तो भाई क्या करना पड़ेगा। चलिए, हमने वो पहला वाला पॉइंट तो देख लिया है। तो 139(5) जो है वो सेक्शन बात करता है कि सीजी वाले जो ऊपर जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट कंपनी का, है ना, सीएजी ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ ए फाइनेंशियल अपॉइंट एन ऑडिटर ड्यूली क्वालिफाइड, है ना, as an auditor of the Companies Act within a period of 180 days from the commencement of the financial year, है ना। So who shall hold office till the conclusion of the annual general meeting। 180 डे का पीरियड यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ऊपर अगर आप रिकॉल करेंगे तो थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि कैजुअल वैकेंसी हो सकती है, राइट। सो अगला टॉपिक हम बात करने वाले कैजुअल वैकेंसी। अच्छा, इन केस ऑफ ए कंपनी अदर देन, ये कौन सा सेक्शन है आपका, 139(8) है। मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा, जिससे आपको ये जितने भी क्लॉजेस हैं वो सारे रिमेम्बर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे से आपको मेमोरी ट्रिक में दे दूंगा, तो मेमोरी टेक्निक के थ्रू आप उसको इजीली रिकॉल कर पाएंगे। ये सेक्शन नंबर कोड करने से कई बार वेटेज बढ़ जाता है और हम लोगों को इसको एग्जाम में एक अच्छा इंप्रेशन जाता है और मार्किंग होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नहीं भी लिखते हैं सेक्शन नंबर तो ऑब्वियस जेनरिक जो क्लॉजेस रहते हैं, प्रोविजंस, उस तरीके से हम लिख के आगे बढ़ सकते हैं, मगर अगर सेक्शन नंबर्स कोट करते हैं तो वेटेड एडवांटेज रहता है हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन द केस ऑफ ए कंपनी अदर देन ए कंपनी हुज अकाउंट्स आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय एन ऑडिटर, है ना, अपॉइंटेड बाय द सीएजी, फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 days। ठीक है, ये जो वैकेंसी है कितने दिनों में फिल करना है, 30 days में करना। सॉरी। अच्छा, ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है तो ये अपॉइंटमेंट जो है वो अप्रूव होगा बाय द कंपनी एट ए जनरल मीटिंग। कब कन्वीन करनी है, विद इन 3 months करनी है ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। अच्छा, वो कब तक ऑफिस होल्ड करेगा, टिल द कंक्लूजन द नेक्स्ट एजीएम तक होल्ड करेगा। ठीक है, अगर कोई कंपनी है जिसके अकाउंट आर सब्जेक्ट टू ऑडिट बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द सीएजी ऑफ इंडिया, है ना, इसको भी क्या करना पड़ेगा, विद इन 30 days में फिल करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इन केस ऑफ द सीएजी इंडिया डज नॉट फिल द वैकेंसी विद इन द सेड पीरियड, कौन कर सकता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, अगले 30 दिनों में कर सकते हैं। हो सकता है चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। कैजुअल वैकेंसी कैसे हो सकती है, 2-3 कारणों से हो सकती है। रेजिग्नेशन की वजह से हो सकती है, रिटायरमेंट की वजह से हो सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हो सकती है, जो हमने ऊपर क्राइटेरिया देखा था 141 में। ठीक है, कैजुअल वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, रेजिग्नेशन के थ्रू होता है। तो 142 क्या कहता है, ये कहता है कि द ऑडिटर हु हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द कंपनी शैल फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। क्या, किस वाले फॉर्म में, स्टेटमेंट इन द ADT 3, है ना, विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार, ये भैया मेरे बस की नहीं है, मैं छोड़ के जाना चाह रहा हूँ, रिजाइन कर रहा हूँ मैं, ड्यू टू XYZ रीजन, जो भी उसके कारण रहे होंगे, उसका ADT 3 फिल करके सबमिट करेगा। कहाँ कहाँ सबमिट करेगा, कंपनी को सबमिट करेगा, रजिस्ट्रार को सबमिट करेगा। चलिए, इन द केस ऑफ द कंपनी इज रिफर्ड टू इन सेक्शन 139(5), क्या था, गवर्नमेंट कंपनी थी, है ना, तो उसमें सच स्टेटमेंट विद द सीएजी अलॉन्ग विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार, यहाँ पे 3 पार्टी हो जाएंगी। वहां पे तो क्या था कि मेंबर्स थे, बोर्ड था और ऑडिटर था, 3 ही लोग थे। यहाँ पे 4 लोग हो जाते हैं। गवर्नमेंट कंपनी हो गया, तो रजिस्ट्रार हो गया और सीएजी हो गया। तो तीनों को नोटिफिकेशन जाना जरूरी हो जाता है इन केस ऑफ द रेजिग्नेशन। अच्छा, ऑडिटर क्या करेगा, इंडिकेट करेगा रीजन एंड अदर फैक्ट्स एज में बी रिलेवेंट विद द रिगार्ड्स ऑफ रेजिग्नेशन, राइट, रिगार्ड टू हिज रेजिग्नेशन, क्या किस कारणों की वजह से दे रहा है और अदर कुछ फैक्ट्स है तो। अच्छा, ऑडिटर ने नहीं किया तो क्या होगा, ऑडिटर ने किया तो पेनाल्टी ऑफ 50,000 रुपए, है ना, ये पूरा का पूरा रिम्यूनरेशन, जो जितना पैसा दिया था, कितना रिम्यूनरेशन, आगे बात करेंगे, टॉपिक आने वाला है अगले कुछ सेक्शंस में, हम लोग रिम्यूनरेशन के ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, 50,000 या रिम्यूनरेशन में से कौन सा, जो ज्यादा होगा वो या जो ज्यादा कम होगा वो, तो विच एवर इज लेस। अच्छा, और अगर कंटिन्यू फेलियर होते चली जा रही है तो भाई 500 रुपया पर डे, है ना, कहां से,
फर्स्ट ड्यूरिंग सच फेलियर कंटिन्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 5 लाख रुपीज, है ना। ये पेनाल्टी क्लॉज हो गया इसका। क्या पेनाल्टी होगी बताइए, 50,000 रुपए या रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, दोनों में से जो भी कम होगा। अगर कंटिन्यूस फेलियर है तो 500 रुपीज पर डे, है ना, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आ रही होंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं रिटायरिंग ऑडिटर की। इसमें भी रीअपॉइंटमेंट इन एनुअल जनरल मीटिंग, अगर वो डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ है रीअपॉइंटमेंट के लिए तो, है ना, कंपनी को राइटिंग में अनविलिंगनेस नहीं डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि भाई मुझे तो नहीं रीअपॉइंट होना है, उस केस में भी कर सकते हैं। अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है ना, सम अदर ऑडिटर और ऐसा बता दीजिए कि भाई ये ऑडिटर तो हमको नहीं चाहिए, तो जो है रिटायरिंग ऑडिटर को भी हम लोग जो है दोबारा रीअपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा, किसी एनुअल जनरल मीटिंग में अगर ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं कर पाए या रिअपॉइंट ही नहीं कर पाए तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है सॉरी शेल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ रही होंगी आपको। एक ऑडिटर क्या कब तक कर सकता है, जीवन भर कर सकता है कि भाई आज कंपनी पकड़ लिया तो अगले 50 सालों तक मैं ही ऑडिट करूंगा, तो नहीं भाई। इस मामले में 139(2) जो है वो रोटेशन ऑफ ऑडिटर की बात करता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया कहता है कि भाई क्लास ऑफ कंपनी शेल मीन द फॉलोइंग क्लास ऑफ द कंपनीज एक्सक्लूडिंग वन पर्सन कंपनी एंड स्मॉल कंपनीज, है ना। 139(2) में क्लास ऑफ कंपनी की बात की है। कौन सी? सारी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनकी पेड ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ या मोर है। जितनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है जिनकी पेड ऑफ शेयर कैपिटल कितनी है, 50 करोड़ या मोर है, ठीक है। या all companies having paid up share capital of below threshold limit mentioned above but having public borrowings from financial institution, banks or public deposit of rupee 50 करोड़ or more। चीज समझ में आई होगी। 3 लिमिट्स हैं, कौन कौन सी? कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है भाई जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 10 करोड़ या ज्यादा है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 50 करोड़ या ज्यादा है। बाकी सारी बची हुई कंपनी, ऑल कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल बिलो दिस थ्रेशोल्ड, 10 करोड़ से कम या 50 करोड़ से कम है ना, बट पब्लिक बोरोइंग जो है वो 50 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में भी इसको एप्लीकेबिलिटी हो जाता है। अच्छा, नो लिस्टेड कंपनी आर ए कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी एज मेंशन्ड अबव शैल अपॉइंट और रीअपॉइंट, किसको नहीं करेगा, एन इंडिविजुअल एज ऑडिटर फॉर मोर देन वन टर्म ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, एक ऑडिटर को एक ही टर्म मिलेगा। अच्छा, अगर कोई फर्म है तो उस केस में 2 टर्म मिल जाएंगे आपको, है ना। प्रोवाइडेड, यहाँ पर फोकस क्या करना है, प्रोवाइडेड। क्या होगा कि इंडिविजुअल ऑडिटर हु हैज कंप्लीटेड हिज टर्म अंडर क्लॉज ए शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इन द सेम कंपनी फॉर 5 इयर्स फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। ये जो बंदा था, पहले पता लगा कि भाई ये जो था इंडिविजुअल था, अब किसी फर्म में आ गया तो उसको दोबारा असाइन कर दो, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, सो दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल, ठीक है। दूसरा, ऑडिट फर्म जिसने क्लॉज बी के हिसाब से अपने 2 टर्म कंप्लीट कर लिए हैं, तो ये भी रीअपॉइंट नहीं होगा, ठीक है, इन द सेम कंपनी फॉर 5 इयर्स फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सच टर्म, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। अच्छा, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे केस स्टडीज बन सकते हैं इसमें से आपके, तो आपको उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर आप पूरा फोकस रखेंगे और इसको बढ़िया तरीके से आप समझ के करके जाएंगे, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते हैं। तो एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, नो ऑडिट फर्म हैविंग ए कॉमन पार्टनर आर पार्टनर्स टू द अदर ऑडिट फर्म whose tenure has expired in a company immediately preceding the financial shall be appointed as auditor of the same company for a period of 5 years, है ना। तो क्या देखेंगे, कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए, है ना। आप किसी दूसरी फर्म में पार्टनर है तो और वो उस फर्म को हम अपॉइंट कर दें इस वाले के लिए, तो वो एलिजिबिलिटी नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल कोट किया हुआ है, ये वाला एग्जांपल आप समझेंगे तो देखिए इसमें क्या कहा है कि XYZ कंपनी जो है ऑडिट फर्म है, ठीक है, 3 है इसमें, X, Y और Z है, 3 पार्टनर हो गए हमारे, है ना। इन्होंने, इनका काम खत्म हो चुका है, टर्म खत्म हो गई है इनकी, है ना, प्रोसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, एक कंपनी ABZN कंपनी जिसमें हमारा जो Z था वो भी पार्टनर है, तो Z कहाँ पार्टनर है, XYZ में और ABZ में है। तो
एबीसी भी डिस्क्वालीफाइड है। क्यों? XYZ तो है ही, क्योंकि उसका टर्म तो खत्म ही हो गया है। एबीसी भी डिस्क्वालीफाइड है, क्यों? क्योंकि जेड यहाँ पे बैठा हुआ है, तो कॉमन पार्टनर नहीं चलेगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है। अच्छा, एवरी कंपनी एग्जिस्टिंग ओनर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विच इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन shall comply with the requirement of this subsection within a period which shall not be later than the date of first AGM of the company held within the period specified under subsection 1 of section 96 after 3 years from the date of commencement of this act। बहुत बढ़िया इंग्लिश इसमें पढ़ दिया है और बंदे हमारे डर जाएंगे, तो डरने का जरूरत नहीं है। फोकस हमें क्या करना है? फोकस हमें सिंपल सी एक चीज के ऊपर करना है, इतना सारा गणित हमको नहीं पढ़ना है। क्या करेंगे हम इसमें? हमारा सिंपल सा गणित हमें यह पढ़ना है। चलिए मैं ऊपर चला गया था, यहाँ पे देखिए आपको क्या फोकस करना है? आपको फोकस करना है 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। आपको इस लाइन के ऊपर फोकस करना है। अभी अगले कुछ मिनट में मैं आपको बताता हूँ ये कैसे आप इंटरलिंक कर पाएंगे। हमारा एक टेबल है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। तो ये रोटेशन क्या बात कर रहा है? इंडिविजुअल ऑडिटर की बात कर रहा है टेबल पे। हमारे एक ऑडिटर, इंडिविजुअल ऑडिटर को कितना टर्म हमने असाइन किया हुआ है बताइए? 5 ईयर का, है ना। अच्छा, कितने साल से आदमी काम कर रहा था? 5 साल से ऑलरेडी कर रहा था, है ना। तो 3 साल और कर सकता है ट्रांजिशन पीरियड में। ठीक है, टोटल कितने साल हो जाएंगे एग्रीगेट? 8 साल हो जाएंगे। क्यों ये 3 साल दे रहे हैं? क्योंकि एक्ट को हम इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। जो पॉइंट अभी मैंने बताया 3 ईयर वाला, उसको हम ट्रांजिशन पीरियड बात कर रहे हैं ना। तो ट्रांजिशन पीरियड जो 3 साल है उसको और दे दिया। अच्छा, किसी को 4 साल हो गए हैं तो भी वो 3 साल कर सकता है। 1 साल तो उसका टर्म बचा ही हुआ है, 2 साल और दे देगा, है ना। मैक्सिमम 3 साल कर सकता है। तो क्यों 3 साल? क्योंकि ये ट्रांजिशन पीरियड की वजह से, तो 7 साल हो जाएगा। किसी को 3 साल हुए हैं तो उसके 2 बचे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उसको 2 साल में खत्म कर देंगे, नहीं भाई, उसको 3 पूरे देंगे। क्यों? ट्रांजिशन के लिए। तो टोटल वो 6 साल कर सकता है। अच्छा, किसी को 2 साल ही हुए हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं? 3 साल और करेगा तो उसकी टर्म पूरी हो जाएगी, तो उस केस में वो 5 ही साल करेगा। किसी को 1 ही साल हुआ है तो कितना मिलेगा? अरे भाई, हमने कहा ना उसको ट्रांजिशन के 3 साल या ओवरऑल टर्म जो 5 साल की, उन दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए। तो हमारा जो है 4 साल तक जो है चल सकता है। तो टोटल हमारी टर्म जो है 5 ईयर हमें पूरी करवानी है उसकी। ठीक है, तो हो सकता है वो वाला क्लास आपको अब समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी को हम जो है फर्म के केस में भी देख लेते हैं। फर्म के केस में क्या है भाई बताइए? तो यहाँ पे उल्टा लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 साल से कर रहा है फर्म। 10 क्यों आ गया फर्म में? क्योंकि हमने कहा है कि हम इसको 2 टर्म देने वाले हैं, इफ यू आर एबल टू रिकॉल, राइट। सो 2 टर्म अगर देने वाले हैं तो पहला 10 साल, तो 3 साल हमने क्या बात किया है? 3 साल हमने बात किया है कि हमारा ट्रांजिशन पीरियड है। तो पहले वाले में 10 में 3 साल, टोटल 13 साल। 9 के साथ फिर से ट्रांजिशन के 3 साल देंगे। टर्म तो खत्म हो गया। टर्म कहाँ तक खत्म हो जाएगा उसका? 2 टर्म देनी है हमें, मतलब कि हमें टोटल ये वाला हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट रहेगा जहां पे 10 साल उसकी 2 टर्म पूरी हो जाती है ना। तो अगर किसी फर्म को 9 साल हुए हैं तो उसको 3 साल और दे देंगे ताकि ट्रांजिशन पीरियड में उसका हो जाए। टोटल फिर 12 साल हो रहे हैं उसके एग्रीगेशन। 8 साल वाले के भी 3 साल दे देंगे, एग्रीगेशन उसका 11 साल हो रहा होगा। अगर किसी को 7 हुए हैं तो 3 ही मिलेंगे भैया उसको, क्योंकि आपकी दोनों टर्म पूरी हो जाएंगी और ये ट्रांजिशन पीरियड के साथ भी कोइंसाइड करता है। 6 के केस में क्या करेंगे? 6 के केस में 4 साल मिल जाएंगे, टोटल टर्म हमारी 10 साल हो जाएगी। 5 के केस में अगले एक टर्म और मिल सकती है, टोटल 10 साल हो जाएंगे। 4 साल के केस में एक पूरा कर लो और 6 ले लो, तो 2 टर्म पूरी कीजिए आप, वो 10 साल ले लीजिए। 3 के केस में 7 साल हो जाएंगे, 2 के केस में 8 साल और 1 के केस में अगले 9 साल। तो सबके केस में हमारी टर्म जो है 10 साल पूरी कर लेंगे। हो सकता है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। चलिए क्विकली स्क्रॉल करते हैं। अच्छा, किसी को हटाना है तो भाई जो है right of the company to remove an auditor or the right of the auditor to resign from such office of the company shall not be prejudiced, है ना। इसको ध्यान रखते हुए काम करना है। अच्छा, in the audit firm appointed by it, the auditing partner and his team shall be rotated at such interval as may be resolved by the members, है ना। Audit shall be conducted by more than one auditor। तो members of company जो है ये स्पेसिफिक रेजोल्यूशंस
दे सकते हैं, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब रूल्स, है ना, इन विच द कंपनी शेल रोटेट देयर ऑडिटर। सो रोटेशन के बारे में और भी ये बातें हो सकती हैं, भाई एक से ज्यादा ऑडिटर को एंगेज कर लो, एक जो टीम है वो बार बार नहीं करेगा, तो ये दो टर्म के केस में भी आप आपस में फर्म के केस में कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक कहता है भाई कि हमारा मैनर ऑफ रोटेशन क्या होना चाहिए बाय द कंपनीज ऑन एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म, जो हमारे 10 साल पूरे होने वाले हैं उस पर क्या चर्चा करें, है ना। ऑडिट कमेटी आ गई भाई, तो ऑडिट कमेटी के बारे में भी आगे हमें टॉपिक आएगा जब बात करेंगे। इसका अगला ही टॉपिक है मेरे ख्याल से, रोटेशन के बाद हम लोग जो है कमेटी के ऊपर भी बात करने वाले हैं, तो उस समय हम आपको कमेटी पर थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेर अच्छा, ऑडिट कमेटी शेल रेकमेंड टू द बोर्ड द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर और द फर्म हु मे रिप्लेस द इनकम्बेंट ऑडिटर ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ सच इनकम्बेंट। कौन करेगा, ऑडिट कमेटी करेगा। अभी इसके बारे में अगले टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, वेर ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमेटी, इसका क्राइटेरिया कहाँ पे है अगले सेक्शन में हम बात करेंगे, तो देख ही लीजिए चलिए, ताकि आपको कोरिलेट करने में आसानी होगी। कंस्टिट्यूशन ऑफ द ऑडिट कमेटी की बात कर रहा है ना, सेक्शन 177 बोलता है, ठीक है। तो कौन करेगा, ये क्राइटेरिया है सर इसका। ऑल पब्लिक कंपनीज विद ए पेड अप कैपिटल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़ रुपीज। ऑल पब्लिक कंपनीज हैविंग टर्नओवर, ये पेड अप कैपिटल की बात कर रहा है दोस्तों, और ये बात कर रहा है टर्नओवर की, मोर देन इक्वल टू 100 करोड़। अच्छा, एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स और डिवेंचर्स मोर देन 50 करोड़, है ना। और ये इंक्लूड करता है किसको, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज को। अगर ये तीन क्राइटेरिया में कहीं भी फुलफिल होता है तो आपको ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है जी। और उसी को लेके हम ये बात कर रहे थे। चलिए, अच्छा, जहां पे इस तरह की ऑडिट कमेटी बन रही है वहां पे बोर्ड क्या करेगा, कंसिडर करेगा किसकी रिकमेंडेशन को, रिकमेंडेशन ऑफ सच कमेटी, है ना। और जहां पे ऐसी कमेटी नहीं है उस केस में, तो बोर्ड शैल इटसेल्फ कंसिडर द मैटर ऑफ रोटेशन, वहां पे बोर्ड अपने आप से खुद से डिसीजन लेगा और मेक इट्स रिकमेंडेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द नेक्स्ट ऑडिटर बाय द मेंबर्स इन द एजीएम। उम्मीद करता हूँ चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे, ये हमने बात कर लिया था, ये वाला भी हम बात कर चुके हैं, ये वाला भी हम बात कर चुके हैं। एप्लीकेबिलिटी का मैंने आपको बता दिया है, राइट। 10 करोड़ रुपीज, 100 करोड़ है, एक्सीडिंग 50 करोड़ रुपीज। तो ये डायग्राम आप याद रखिएगा एंड इट विल बी इजी ब्रीजी फॉर यू, ठीक है। प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे करने वाले हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जिसको ऑडिट कमेटी बनाना है 177 में, है ना, तो जहां पे कमेटी नहीं बनानी है वहां पे बोर्ड आ जाएगा। तो आप वो तीन क्राइटेरिया एक बार इवैल्यूएट कर लीजिएगा, या तो बोर्ड इवैल्यूएट करेगा या ऑडिट कमेटी इवैल्यूएट करेगा। कंसिडरेशन द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द इंडिविजुअल और द फर्म प्रपोज टू बी कंसिडर्ड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर, है ना। और जहां पे सच क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आर प्रपोर्शन है साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी पे। हमको छोटी सी फर्म है, हमको बहुत बड़ा बिग फर्म नहीं चाहिए, साइज कम है, ट्रांजेक्शन्स कम है, या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल कवर कर लेगा, या आपकी फर्म है काफी सारी ब्रांचेस है, सो यू नीड सम मोर एक्सपीरियंस। कोई छोटी फर्म है जिसके साथ बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हो सकता है कोई नया नवेला ऑडिटर भी काम चल जाएगा। और किसी बड़ी पुरानी कंपनी के केस में जिसकी कई सारी ब्रांचेस मल्टीनेशनल्स हैं एंड कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन हैं, उस केस में हो सकता है कि नए नवेले से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सपीरियंस फर्म को ही इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये डिसीजन कौन लेगा, या तो ऑडिट कमेटी ले सकती है या फिर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आगे बढ़ना है। Audit committee or the board as the case may be may call for such other information from the auditor, कि भाई जो भी जरूरत लगेगी एक्स्ट्रा डेटा भी हम लोग मांग सकते हैं उससे, कि आप पहले का ऑडिट क्या हुआ है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तो नहीं है, राइट। सो वो सारे चैप्टर्स को यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करते हुए डेटा कलेक्ट लेगा, ठीक है।
अच्छा, इस केस में क्या करेगा ऑडिट कमेटी, क्या करेगी? ऑडिट कमेटी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताएगी फॉर कंसिडरेशन, और जहां पे ऑडिट कमेटी नहीं है वहां पे बोर्ड जो है वो रिकमेंड करेगा किसका नाम, इंडिविजुअल का या फर्म का, किसको, मेंबर्स को, एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है, तो चेन हो जाएगा। अगर ऑडिट कमेटी है तो वो बोर्ड को बताएगी, और अगर बोर्ड ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा और एजीएम में मेंबर्स को बता देगा। ठीक है। अच्छा, ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन को अगर बोर्ड ने मान लिया है तो वो मेंबर्स को एजीएम में बताएगा। तो ये वाला चैनल जो है आपका, ये तो हमेशा रहने ही वाला है, देयर इज नो एक्सेप्शन अबाउट इट, है ना। इस केस में यहाँ पे एक्सेप्शन हो सकता है कि ऑडिट कमेटी सिर्फ वो 3 क्राइटेरिया जो मैंने बताए हैं उस केस में ही आपको फुलफिल करना है, बाकी के केस में आपको वो एप्लीकेबल नहीं रहेगा। चलिए, अच्छा, बोर्ड को मजा नहीं आया जो रिकमेंडेशन आया ऑडिट कमेटी का, तो वो कहेगा भाई रिकंसीडर कीजिए आप, है ना, और रीजन बता देगा कि मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा, व्हाई वी हैव अ डिसएग्रीमेंट। ऑडिट कमेटी क्या करेगी भाई, वो ओरिजिनल रिकमेंडेशन को देखेगी और उसने कहा कि भाई नहीं, हम तो पुराने में ही ठीक है और हम हमारा चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो बोर्ड विल हैव अ फाइनल say into it and they can have their own recommendation for consideration of the members. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उनका फाइनल कॉल इसमें रहेगा, एंड विच इवेंचुअली विल बी प्रेजेंटेड टू द मेंबर्स एंड मेंबर्स विल अडॉप्ट इट टू द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है। ये ऑडिटर जो है ऑडिटर जो है एनुअल जनरल मीटिंग में जो ऑफिस होल्ड करेगा वहां से 6 एनुअल जनरल मीटिंग्स के लिए होल्ड करेगा। ठीक है, फ्रॉम द ओरिजिनल अपॉइंटमेंट डेट से। आई एम सॉरी, फोन आ गया था बीच में, डिस्टर्बेंस के लिए माफी चाहता हूँ। चलिए आगे बात करेंगे, ऑडिटर के रेम्युनरेशन की बात करेंगे। तो ऑडिटर का रेम्युनरेशन क्या है भाई? ऑडिटर का रेम्युनरेशन है कि एज पर सेक्शन 142 ऑफ द एक्ट, द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर ऑफ ए कंपनी शैल बी फिक्स्ड इन इट्स जनरल मीटिंग, है ना, आर इन सच मैनर एज मे बी डिटरमाइंड देयरइन। बोर्ड में फिक्स द रेम्युनरेशन ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय इट। ठीक है, तो ये क्लॉज आप ध्यान में रखिएगा कि टिपिकली जनरल मीटिंग में फिक्स करते हैं या फिर फर्स्ट अगर है तो खुद से बीओडी जो है खुद से डिसाइड कर सकता है। ठीक है, अगली बात करेंगे, रिमूवल ऑफ द ऑडिटर अगर निकालना है तो रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी टर्म, ये क्राइटेरिया हो सकता है कि भाई मजा नहीं आ रहा है ना, तो क्या कर सकते हैं, बाय स्पेशल रिजोल्यूशन, है ना, इस टर्म ओनली बाय स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ द कंपनी, है ना, आफ्टर obtaining the previous approval of the central government in that behalf as per rule 7 of the CAR। ठीक है, 141 बोलता है। अच्छा, एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर शेल बी मेड इन द फॉर्म ADT2। ठीक है, और इसके साथ फीस भी जमा करना है। ठीक है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कितने दिन में बताना है? विद इन 30 डेज। कहां से? रिजोल्यूशन जब से पास किया है। कंपनी को क्या करना पड़ा है? जनरल मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी 60 डेज में, है ना। कहां से? रिसिप्ट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन। ठीक है। बिफोर टेकिंग एनी एक्शन फॉर रिमूवल बिफोर एक्सपायरी ऑफ द टर्म, द ऑडिटर कंसर्न शैल बी गिवन ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। कि उसकी फरियाद भी सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि आप एक तरफा कार्रवाई कर दें। आपको अगर उसको निकालना है तो आप उसको जो है बराबर अपॉर्चुनिटी दीजिए कि उसकी बात भी सुन ली जाए और उसके बाद में फिर आप इसमें आगे बढ़िए। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, तो 140(4) जो है 144 में जो है अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर हु वाज रिमूव्ड के बारे में बात कर रहा है। स्पेशल नोटिस चाहिए, है ना, फॉर ए रिजोल्यूशन एट एन AGM। ठीक है, अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। अच्छा, या फिर एक्सप्रेसिंग कि रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा नहीं अपॉइंट करना है एक्सेप्ट वेदर रिटायरिंग ऑडिटर हैज कंप्लीटेड ए कंसेक्यूटिव टेन्योर ऑफ 5 इयर्स।
या इज द केस में बी ऑफ 10 ईयर। 10 ईयर क्यों बोल रहा है ये, ऊपर अभी बताया ना भाई, यहाँ पे है ना, ये वाला क्राइटेरिया आ जाता है वहां पे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बात कर लिया हमने इसका 10 ईयर का। अच्छा, ऐसा नोटिस मिल गया, रेसिप्ट नोटिस ऑफ सच रेजोल्यूशन, है ना, कंपनी क्या करेगा, कॉपी भेजेगा किसको, रिटायरिंग ऑडिटर को। बहुत बढ़िया, कॉपी उसको पहुंच चुका है रिटायरिंग ऑडिटर को। अब क्या होगा, अच्छा, रिप्रेजेंटेशन दे सकता है राइटिंग में कंपनी को कि भाई मेरी फरियाद भी सुन लो, है ना, एंड रिक्वेस्ट इट्स नोटिफिकेशन टू मेंबर ऑफ द कंपनी। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन अगर मिल गया है तो बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है, और ऐसा नोटिस अगर आ गया है तो मेंबर को बता देगा, स्टेट ऑफ द फैक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन जो है वो मेंबर्स को बता देगा। सेंड ए कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी टू होम नोटिस ऑफ द मीटिंग इज सेंट। ठीक है, तो ये कॉपी भी रिप्रेजेंटेशन का भेज सकते हैं। अच्छा जी, ठीक है। If a copy of representation is not sent as aforesaid, a copy therefore shall be filed with the registrar. ठीक है, curtailing right of the auditor regarding circulation of copy of representation in the case of appointment of auditor other than retiring auditor under section 144 में क्या कह रहा है, अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाता है ना, कि भाई जो है राइट कन्फर्ड बाय 144 of the companies are being abused by the auditor, then the copy of the representation may not be sent and the representation need not be read out into the meeting। ये हमारा जो है कर्टेलिंग है। तो ऑडिटर का राइट क्या है कि भाई उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो जनता को कम्युनिकेट कर दिया जाए, मेंबर्स को कम्युनिकेट कर दिया जाए, मगर अगर लगता है कि ट्रिब्यूनल ने जो डिसाइड किया है कि भाई ये जो है अब्यूज है बाय द ऑडिटर एंड रिप्रेजेंटेशन जो है भेजने की जरूरत नहीं है एंड नीड नॉट टू बी रेड आउट एज वेल। सो ये हमने बात कर लिया। सीलिंग और नंबर ऑफ द ऑडिटर ये हम पहले बात कर चुके हैं। कैन एनीवन टेल मी, क्या बात किया था हमने, हमने कई सारे क्राइटेरिया की बात की थी, मगर मोटा मोटा अगर मैं बात करूं, लिमिट क्या है हमारी, 20 कंपनी की है ना, 3 ऑडिटर है तो 20 दिया 60 हो जाएगा फर्म के केस में। सो मोर देन 20 कंपनीज अदर देन ओपीसी, डोरमेंट, स्मॉल प्राइवेट कंपनीज हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया था। 20 कंपनीज की लिमिट है और वो पर पर्सन है। तो जैसे कि एग्जांपल कोट करता हूँ आपको, तो ये वाला एग्जांपल देख लीजिए। एबीसी एंड कंपनी जो है ऑडिट फर्म है, पार्टनर एबीसी है ना, वो तीनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वो तीनों के पास क्या है, 4, 6 और 10 कंपनीज है, टोटल कितनी हो गई, 20, है ना। प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट रिमेनिंग इन द नेम ऑफ एबीसी एंड कंपनी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देखिए एबीसी कैन होल्ड अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ 40 मोर, क्यों 20 है, 3 पार्टनर्स हैं तो 20 दिया 60, राइट, टोटल 60 कर सकते हैं। इंडिविजुअल कैपेसिटी में टोटल अभी तक हम लोगों ने 20 ही होल्ड किए, 4, 6 और 10, तो हमारे पास 40 और अवेलेबल है। अच्छा, ए कितनी होल्ड कर सकता है, ए के पास 4 है, टोटल 20 कर सकता है तो 16 और कर सकता है। बी कितना कर सकता है, बी के पास 6 है तो 14 और कर सकता है, और सी के पास जो है 10 है तो 10 और होल्ड कर सकता है। ये इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसका, है ना। अच्छा, एबीसी कैन होल्ड अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर इन ऑल द 60 प्राइवेट कंपनीज, क्यों, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, कि वो काउंट ही नहीं होती है, स्मॉल कंपनीज काउंट नहीं होती, डोरमेंट कंपनी काउंट नहीं होती है ना, सीलिंग लिमिट से बाहर होती है। अच्छा, किसी के पास अगर एबीसी एंड कंपनी के पास 20 कंपनी ऑलरेडी है तो 40 और कंपनी ऑडिट ले सकते हैं, और ऊपर वाला जो क्राइटेरिया हमने बताया है उसको लेके ये काम आगे बढ़ सकता है। तो पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 3 क्राइटेरिया वही है, ये एक्सेप्शन क्लॉजेस का ध्यान रखिएगा आप बस, कि ओपीसी काउंट नहीं होता है, डोरमेंट कंपनी काउंट नहीं होती, स्मॉल कंपनी काउंट नहीं होती, प्राइवेट कंपनी काउंट नहीं होती है, इसका पेड अप शेयर कैपिटल जो है लेस देन 100 करोड़ है, और एक इंडिविजुअल अप टू 20 कर सकता है। अगर फर्म में 4 लोग हैं तो मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा, जितने लोग हैं उतने। ठीक है, वही एक केस स्टडी है, बहुत ही अच्छा सिंपल सा एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पावर्स एंड राइट्स ऑफ द ऑडिटर क्या कहता है, क्या क्या ताकत दी हुई है। भाई हम राइट ऑफ एक्सेस टू बुक्स, कंपनी की ऑडिट करने जा रहे हैं तो किताबें तो बताओगे या नहीं बताओगे, है ना। सो बुक्स, अकाउंट, वाउचर्स वगैरह जो है हम इसके देख सकते हैं। ठीक है जी। क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, कि भाई बताइए वो क्या जानकारी जो भी हमें चाहिए वो सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन हम या कलेक्शन जो है कर सकते हैं। राइट टू रिसीव नोटिसेज एंड टू अटेंड जनरल मीटिंग, ये हमारे ऑडिटर के पास राइट्स होता है ना। ही शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड, उसको ही इज एंटाइटल्ड टू अटेंड ए जनरल मीटिंग, कि वहां पे क्या चर्चा चल रही है ना। अच्छा, सारे नोटिसेस उसको पता लगने चाहिए। अच्छा, राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम, ही हैज ए राइट टू रिपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, तो ये रिपोर्ट वो आगे प्रेस्क्राइब कर सकता है। राइट टू लीन, लीन क्या होगा। अच्छा, in terms of the general principle of law, any person having the lawful possession of somebody else's property on which he has worked may retain the property for non-payment of his dues on account of the work done on the property, है ना। तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, कैन एक्सरसाइज लीन ऑन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्लेस्ड एट हिज पोजीशन बाय द क्लाइंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फीस फॉर वर्क डन ऑन द बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कि भैया अगर कंपनी ने ऑडिट की फीस देने में आनाकानी की तो जो बुक्स और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पोजीशन में आए हैं इस पार्ट ऑफ द ऑडिट, आप उसको होल्ड करते हैं, आप उसका राइट टू लीन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ कंडीशंस है, डॉक्यूमेंट जो रोके हुए हैं दे मस्ट बिलोंग टू द क्लाइंट हु ओज द मनी, है ना। मस्ट हैव कम इनटू पोजीशन ऑफ द ऑडिटर ऑन द अथॉरिटी ऑफ द क्लाइंट, है ना। दे मस्ट नॉट हैव बीन रिसीव्ड थ्रू इरेगुलर और इलीगल मींस, ऐसा नहीं किसी से दबा छुपा के बुक्स उठा लाया और फिर हम लाइन का एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो नहीं चलेगा। ठीक है। अच्छा, we can only auditor can only retain the document only if he has done work on the document assigned to him, बाकी किसी चीज के डॉक्यूमेंट्स को वो होल्ड नहीं कर सकता है। such of the document can be retained which are connected with the work on which fees has not been paid, so उसको भी हम लोग यहाँ पे लीन का एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। ड्यूटीज की बात करते हैं, ड्यूटीज में क्या है, राइट्स तो हो गए भाई, ड्यूटी क्या है हमारी, इंक्वायर ऑन सर्टन मैटर्स, है ना। क्या क्या मैटर्स हैं वो, loans and advance जो कंपनी ने made on the basis of security have been properly secured and whether the terms on which they have been made are prejudicial to the interest of the company and its members. Transaction of the company which are represented merely by book entries are prejudicial to the interest of the company. ठीक है। जहां पे कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, बैंकिंग कंपनी नहीं है ना, whether so much of the assets of the company as consist of shares, debenture, other security have been sold at a price less than that at which they were purchased by the company, तो उस मैटर्स को डीपली जाके इन्वेस्टिगेट करना होगा। लोन एडवांसेस कंपनी ने जो दी है उनको डिपॉजिट दिखा रही है कंपनी, तो उसको इन्वेस्टिगेट करिए। पर्सनल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में चार्ज कर दिया है अकाउंट पे, तो उसको डीपली एक्सरसाइज कीजिए आप उसको, और मैटर को इंक्वायर करना पड़ेगा। अच्छा, books and documents of the company state that any share has been allotted for cash, whether cash has actually been received in respect of such allotment, इसको हमको इंक्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ड्यूटी टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, भैया ये ऑडिटर का ड्यूटी है कि वो ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा। ठीक है। ड्यूटी टू कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, है ना, ये 143(9) कहता है कि एवरी ऑडिटर शिल कंप्लाई विद द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। 143(10) क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग एज रिकमेंडेड बाय द ICAI। ठीक है। इन कंसल्टेशन एंड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द रिकमेंडेशन मेड बाय NFRA, NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चेंज हुआ है। ठीक है। तो ये रिसेंट अमेंडमेंट्स थे कुछ पास्ट के, तो उसको आप ध्यान रखिएगा ताकि आपको ये वाला क्लॉज रिकॉल करने में दिक्कत ना हो। ऑडिटर की ड्यूटी है कि भाई वो रिपोर्ट करे, क्या रिपोर्ट करे, जो भी उसकी he has sought and obtained all the information and explanation which to the best of his knowledge and belief were necessary for the purpose of his audit, and if not the details thereof and the effect of such information on the financial statement। ठीक है, कि जो उसके ओपिनियन में प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ हैव बीन केप्ट
इसके ऊपर अपने को रिपोर्ट करना है। अच्छा, report on the accounts of any branch office of the company audited under subsection 8 by a person other than company's auditor has been sent to him under the proviso to that subsection and the manner in which he has dealt with in preparing his report. ब्रांच के कुछ रिकॉर्ड्स अगर उसके रिप्रेजेंटेटिव ने ऑडिट किए हैं या वो रेफर कर रहा है रिकॉर्ड्स को, तो उसके बारे में भी रिपोर्ट करना होगा। अच्छा, कंपनीज बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेल्ट विद द रिपोर्ट आर इन एग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिटर्न्स, उसके बारे में रिपोर्ट करना है ना, टैली कर रहे हैं प्रॉपरली। फाइनल स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रहे हैं, इसके बारे में रिपोर्ट करना है। Observation or comments of the auditor on financial transaction are matters which have an adverse effect on the functioning of the company, उसके बारे में भी रिपोर्टिंग करनी होगी। ठीक है। Whether any director is disqualified from being appointed as a director, अगर ऐसा है तो उसके बारे में भी रिपोर्टिंग करनी होगी। Any qualification, reservation or adverse remark relating to maintenance of accounts and other matters connected therewith, उसका भी आपको रिपोर्टिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्लेस है या नहीं है, एंड उनका ऑपरेटिव इफेक्टिवनेस कैसा है, उसके ऊपर भी अपना ओपिनियन हमको रिपोर्टिंग में देना पड़ेगा। ठीक है। आईएफसी विद रेस्पेक्ट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे? टू ए प्राइवेट कंपनी विच इज ए 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी है, इसका टर्नओवर जो है 50 करोड़ से कम है, या बोरोइंग्स जो है वो 25 करोड़ से। ठीक है। चलिए, ये आईएफसी से एग्जेम्पशन है जो हमने अभी बात की। ये 3 क्राइटेरिया है आपके जो अभी हम बात करके निपटे हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। फ्रॉड का रिपोर्टिंग का ड्यूटी है भाई साहब, है ना। अगर कहीं पे भी फ्रॉड की जानकारी लगती है तो उसकी रिपोर्टिंग हमको करनी है। कुछ क्राइटेरिया हैं स्पेसिफिक, है ना, कि जो ऑफेंस ऑफ फ्रॉड है वो अगर 1 करोड़ और अबव है ना, तो ऑडिटर किसको रिपोर्ट करेगा? मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। ऑडिट कमेटी और बोर्ड को कब बताएगा? लेस देन 1 करोड़ है। ठीक है। और ऑडिट कमेटी अगर सेक्शन 177 में कॉन्स्टिट्यूट किया है तो ऑडिट कमेटी को बताएगा, और अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड को बताएगा, है ना। बोर्ड की रिपोर्ट में कब डिस्क्लोजर करेगा? द कंपनीज हुज ऑडिटर हैव रिपोर्टेड फ्रॉड अंडर दिस सबसेक्शन to the audit committee or the board but not reported to the central government, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करेगा। ठीक है। एक्ट ऑफ फ्रॉड रिपोर्टिंग बाय द ऑडिटर इफ इट इज डन इन गुड फेथ, so ये जो है सबसेक्शन 13 ऑफ सेक्शन 143 जो ऑफ द कंपनीज एक्ट है सेफगार्ड करता है। अच्छा, इट इज क्या कहता है भाई हमारा 143 सबसेक्शन 13 कि no duty to which an auditor of a company may be subject to shall be regarded as having been contravened by reason of his reporting the matter above if it is done in good faith। ठीक है। चलिए, अच्छा, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस एप्लीकेबल होगा कहां पे? रिगार्डिंग फ्रॉड रिपोर्टिंग, मतलब कि कॉस्ट ऑडिटर और सेक्रेटरी ऑडिटर को भी एप्लीकेबल है ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज अंडर द सेक्शन 148 एंड 204 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। और अगर वो कंप्लाई नहीं करते हैं, कौन? ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी, है ना, ये सेक्शन 143 क्लास 12 को नहीं कंप्लाई करते तो क्या होगा? ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख बट अप टू 25 लाख। इसमें हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। पेनाल्टी क्लॉज है तो जरा संभल के मेरे बाबूजी। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूटी टू रिपोर्ट एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नफरा ने कह दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया है ना, कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स आ है, उसकी रिपोर्टिंग भी इस पे इनको करना होगा, उसी के बारे में बात कर रहा है ना। ब्रांच ऑडिट के बारे में बात कर रहे हैं। ड्यूटी टू स्टेट द रीजन फॉर क्वालिफिकेशन और नेगेटिव रिपोर्ट, जहां पे 143(4) कहता है कि भाई अगर कुछ मैटर्स ऐसे हैं which are required to be included in the audit report is answered in the negative or with the qualification, तो रिपोर्ट में उसका रीजन हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टिंग अंडर कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, जिसको कारो 2016 भी कहते हैं हम लोग।
शॉर्ट फॉर्म में आप सब लोग जानते ही होंगे, है ना। तो ये कारो का क्लास है इसमें, ठीक है। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं एक बार क्या रिपोर्टिंग करनी है। CG after consultation with the committee constituted under 143(11) of the Companies Act, ठीक है, डेटेड सो एंड सो। ये डेट वगैरह अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब वो अमेंड आया था तब बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सॉरी अबाउट दैट। अच्छा, गिव मी अ मिनट, लेट मी सी इफ आई कैन पॉज इट। अच्छा, तो आगे देखते हैं। कारो की बात कर रहे थे हम, तो कारो में क्या करना है, कारो का एक जो है 143 के एडिशन में कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उसके बारे में बात कर रहा है ये। कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं, एक्सेप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे नीचे एक डायग्राम दिया हुआ होगा। ओके, एग्जेम्प्टेड क्लास कौन कौन नहीं है, बैंकिंग कंपनी को एप्लीकेबल नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं है, सेक्शन 8 कंपनीज जो निधि कंपनीज होती है उनके केस में एप्लीकेबल नहीं है, 1% कंपनी के केस में एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल कंपनी के केस में नहीं है, एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड कंडीशंस, उसको केस में भी नहीं है। कौन कौन सी स्पेसिफाइड कंडीशन है, हैविंग ए पेड ऑफ शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नॉट मोर देन 1 करोड़, ठीक है, एंड टोटल बोरोइंग डज नॉट हैव टू बी एक्सीडिंग 1 करोड़ फ्रॉम एनी बैंक, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये वाले पैराग्राफ में उसका क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा एंड देयर आफ्टर यू विल बी एबल टू रिस्पॉन्ड इट प्रीटी वेल, ठीक है। क्या क्या रिपोर्टिंग हमें इंक्लूड करना है, मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, है ना। ये बहुत जोरदार बात है, काफी सारा मैटर इसमें इंक्लूड किया हुआ है, उन 5 जो पैरामीटर्स है उनको छोड़कर, ठीक है। विद द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड, ठीक है, फिक्स्ड एसेट हैव बीन फिजिकली वेरीफाइड बाय द मैनेजमेंट रीजनेबल इंटरवल के ऊपर, टाइटल डीड जो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंपनी के नाम में ही है ना, अगर नहीं है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। अच्छा, वेरिफिकेशन, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हो चुका है ना, रीजनेबल इंटरवल पे मैनेजमेंट के थ्रू, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट करना है। कंपनी ने अगर किसी लोन को सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड टू कंपनी फर्म एलएलपी अदर पार्टीज कवर्ड इन द रजिस्टर, है ना। सो टर्म्स एंड कंडीशन जो है ग्रांट के लोन आर नॉट प्रेजुडिशियल टू कंपनीज इंटरेस्ट, हमारे फायदे में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नुकसान में जा रहे हैं हम। शेड्यूल ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन स्टिपुलेटेड, अच्छा, अमाउंट ओवर ड्यू, है ना, तो स्टेट द टोटल अमाउंट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, ठीक है, एंड द स्टेप्स टेकन फॉर रिकवरी ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, उसके बारे में भी मैं बात करनी हूँ। अच्छा, लोन्स, इन्वेस्टमेंट गारंटीज एंड सिक्योरिटी प्रोविजन ऑफ 185 एंड 186, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, दिस इज इन सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट में कंपनी एक्ट का 148 तक जो है वो क्लॉजेस इंक्लूडेड है, तो ये आप आगे पढ़ेंगे सीए फाइनल में। चलिए, तो ये कारों के कुछ स्पेसिफिक हैं, बहुत ज्यादा अभी रिलेवेंट नहीं होगा, मगर आपके सीए फाइनल में बहुत ज्यादा रिलेवेंट होगा, एक बार इसको देख लीजिएगा कि कारों की रिपोर्टिंग क्या क्या करना है। 16 क्वालिफायर्स हैं इसमें टोटल, और सीए फाइनल में तो ये काफी डिटेल में आता है, ठीक है। तो ये कारों के 16 क्राइटेरियाज यहाँ पे इन्होंने नोटिफाई किए हुए हैं, ठीक है। चलिए, अनफेवरेबल और क्वालिफाइड आंसर्स हैं तो उसका रीजन भी साथ में बताना है, ऊपर भी हम बात कर चुके हैं इस चीज की, तो सिमिलर ही है, ठीक है। कुछ डिस्क्लोजर्स हमें करने होंगे ऑडिटर की रिपोर्ट में, क्या क्या, एस1 का डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, है ना, कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोज की हुई है, अकाउंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयर्ड ऑन एक्यूरेट बेसिस, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न इज नॉट फॉलोड, है ना, अकाउंटिंग पॉलिसी अगर चेंज की है और उसके डिस्क्लोजर्स नहीं किए हैं तो यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली कॉल आउट करना होगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, ज्वाइंट ऑडिट, ज्वाइंट ऑडिट कब हो सकती है ना, practice of appointing chartered accountant as joint auditor is quite widespread in big companies and corporations, ठीक है।
So ये क्या करता है, बेसिकली इट implies pooling together the resources and expertise of more than one firm of the auditor to render an expert job in a given time period. ठीक है, चलिए एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं इसके जॉइंट ऑडिट्स के, शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टीज हो सकता है, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल कंसल्टेशन हो सकता है, लोअर वर्कलोड हो सकता है, बेटर क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो सकता है ना, improved service to the client है, displacement of the auditor of the company taken over in a takeover often obviated, तो वो चीज रिड्यूस हो सकती है. इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसीज जो है, वर्क कैन बी स्प्रेड यूजिंग द एक्सपर्टीज ऑफ द लोकल फर्म which are in a better position to deal with the detailed work and the local laws and regulations than a party which is a remote. अच्छा, लोअर स्टाफ डेवलपमेंट की कॉस्ट लगती है जॉइंट ऑडिट्स में, लोअर कॉस्ट टू कैरी आउट द वर्क, की लोकल पार्टी है तो सस्ते में कर देगा, बाहर की पार्टी होगी उसको ट्रेवल करके जाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक्स के खर्चे आएंगे एंड उनका स्टे एंड देन सब कुछ आएगा. ठीक है, हेल्दी कंपटीशन टुवर्ड्स द बेटर परफॉर्मेंस, दो फर्म के बीच में अगर कंपटीशन रहेगा तो वहां पे दे हैव टू परफॉर्म वेल, द फिटेस्ट विल सर्वाइव. चलिए डिसएडवांटेज भी है, द फीस बीइंग शेयर्ड, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, हम एक दूसरे के साथ ह्यूमन साइकी है, टू डिफरेंट फर्म्स है ना, जनरल सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ सम ऑडिटर्स, एक फर्म दूसरी फर्म से बेहतर है, मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद क्या है, राइट, सो दोस काइंड ऑफ द इश्यूज माइट पॉप इन. अच्छा, कोऑर्डिनेशन में इशू हो सकता है दो फर्म के कोऑर्डिनेशन में, एरिया ऑफ वर्क ऑफ कॉमन कंसर्न बीइंग नेग्लेक्टेड, जो दोनों का काम है तो एक पार्टी सोचेगा कि वो कर लेगा, दूसरा पार्टी सोचेगा कि वो कर लेगा, है ना. अनसर्टेनिटी अबाउट द लायबिलिटी फॉर द वर्क डन, कि इशू किसको आएगा, मैंने किया तो मुझे आएगा या उसे आएगा, राइट, सो लायबिलिटी थोड़ा सा एक दूर हो जाता है, तो वो एक आप ये देख लीजिएगा, है ना. ये स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ऐसे 299 रिवाइज जो है जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें प्रिंसिपल्स कॉल आउट किए गए हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप एक बार ये सेक्शंस पढ़ लीजिएगा, सो दैट विल बी आपको क्लियरिटी आ जाएगा. बात करते हैं ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स के बारे में, तो यहाँ पे क्या देखना है भाई हमको कि एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस क्या बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, जो क्या देंगे, ट्रू एंड फेयर व्यू देंगे किसका, ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग दैट ऑफ इट्स ब्रांच ऑफिस, है ना. अच्छा, and explain the transaction affected both at the registered office and its branches, and such book shall be kept on an accrual basis, not on a cash basis, and according to the double entry system of accounting. ये समझ में आई होंगी आपको. 128 क्या कहता है कि बुक्स एंड रिकॉर्ड्स जो है आपको वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखने हैं, किसके रखने हैं, ब्रांच के और ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस दोनों के रखने हैं, तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू को रिप्रेजेंट करना चाहिए और एक्यूरल बेसिस पे अकाउंटिंग होना चाहिए और डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया होना चाहिए. ठीक है, बहुत बढ़िया. अच्छा, इट मे बी नोटेड दैट ऑल और एनी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ सेट पेपर्स मे बी केप्ट एट सच अदर प्लेस इन इंडिया, इंडिया में दूसरी जगह भी रख सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में डिसाइड, है ना, वेयर सच ए डिसीजन इज टेकन द कंपनी शेल विद इन 7 days फाइल विद रजिस्ट्रार एंड नोटिस इन राइटिंग गिविंग द फुल एड्रेस ऑफ द अदर प्लेस. मान लो कि अगर हमारे रिकॉर्ड जो है कहीं और रखना है तो 7 दिनों में हमें रजिस्ट्रार को बताना पड़ेगा. ठीक है, ठीक है. अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी रख सकते हैं, तो वो तो अलाउ कर ही दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें, है ना. अच्छा, ब्रांच ऑफिस इन इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है ना, तो इट शेल बी डीम्ड टू हैव कंप्लाइड विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1. A proper book of account relating to the transaction जो ब्रांच ऑफिस में हुए हैं are kept at the office in proper summarized returns periodically are sent by the branch office to the company or the other place required. ठीक है, तो ब्रांच के रिकॉर्ड जो है प्रॉपरली रजिस्टर्ड ऑफिस को सेंड करते रहना चाहिए. चलिए आगे बढ़ता है. ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि where a company has a branch office, है ना, the account of that office shall be audited किसके थ्रू, बाय द ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर द कंपनी अंडर दिस एक्ट और बाय एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी अंडर दिस एक्ट. ठीक है, एंड अपॉइंटेड एज सच अंडर सेक्शन 139. ठीक है. अच्छा, जहां पे ब्रांच ऑफिस जो है देश के बाहर है, फॉरेन में है, कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट, युगांडा, जापान, चाइना, इंडिया से बाहर है ना,
तो अकाउंट ऑफ ऐसी ब्रांच के शेल बी ऑडिटेड किसके द्वारा, ईदर बाय द कंपनीज ऑडिटर और बाय एन अकाउंटेंट, है ना, or by any other person duly qualified to act as an auditor of the account of the branch office in accordance with the law of that country जहाँ पे वो ब्रांच है, ठीक है, वहाँ के जो रेगुलेशंस होंगे उसके हिसाब से भी क्वालिफिकेशन होगा तो भी काम चला लेंगे. Duties and powers of the company's auditor with reference to the audit of the branch and the branch auditor shall be such as may be prescribed. ठीक है जी. तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि अपना ऑडिटर ही जाके ऑडिट करे, जरूरी नहीं है, वहाँ का लोकल ऑडिटर भी अपन उठा सकते हैं. और सिर्फ ऑडिटर ही नहीं चाहिए, वहाँ का अकाउंटेंट या अदर पर्सन जो भी क्वालिफाई है वहाँ के लोकल लॉस के हिसाब से उस कंट्री के, तो भी हमको काम चल जाएगा. ठीक है. ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा, ब्रांच ऑडिटर शेल प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच एग्जामिन्ड बाय हिम और हर एंड सेंड इट टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी. ठीक है. एंड उस केस में वो अपनी रिपोर्ट में इसका जिक्र करेगा. ठीक है. तो ये आपने देखा. यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्लॉज आ रहा है, यूजिंग द वर्क ऑफ द अनदर ऑडिटर. ठीक है. यहाँ पे अब जैसे ब्रांच का एग्जांपल ही लिया, तो ब्रांच का एग्जांपल किसी दूसरे आदमी ने उसका ऑडिट किया था, है ना. तो यहाँ पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए किसका, रोल ऑफ सच ऑडिटर एंड कंपनी ऑडिटर इन रिलेशन टू द अकाउंट ऑफ द ब्रांच एंड ऑडिट ऑफ द कंपनी एज ए होल. कि भाई जो बंदा ऑडिट कर रहा है साइट का, वो खाली साइट का या ब्रांच का ऑडिटर है, जबकि ये ओवरऑल कंपनी का ऑडिटर है. ठीक है. ऐसे 600 है हमारा, कौन सा, यूजिंग द वर्क ऑफ द अनदर ऑडिटर, उसके बारे में क्लियर करता है. क्या करता है, इट मेक्स क्लियर दैट इन सर्टेन सिचुएशन द स्टैट्यूट गवर्निंग द एंटिटी may confer a right on the principal auditor to visit a component and examine the books of account and other records of the said component if he thinks it necessary to do so. ठीक है. ये हो जाएगा. चलिए, यहाँ पे इसी के बारे में जिक्र किया है. और इसको अगर आप देखेंगे तो फिर कॉस्ट अकाउंट वाले टॉपिक, कॉस्ट ऑडिट वाले के ऊपर आते हैं. मतलब इसमें मोटा मोटी आपको यहाँ पे एक चीज और मैं बताना चाह रहा था. लेट्स सी इफ आई कैन. ओके, यहाँ पे हाँ, द प्रिंसिपल ऑडिटर में ऑल्सो विश टू विजिट द अदर ऑडिटर, है ना, और ऑडिटर माइट डिस्कस विद द अदर ऑडिटर द ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाइड और रिव्यू ए रिटन समरी ऑफ द अदर ऑडिटर्स प्रोसीजर एंड फाइंडिंग, है ना. ये कंप्लीटेड क्वेश्चन हो सकता है, ये चेकलिस्ट हो सकता है, ये मेथड है उसके एग्जीक्यूशन के. अच्छा, एनटी नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर विल डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंस ऑफ द एंगेजमेंट एंड द प्रिंसिपल ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ द अदर ऑडिटर, उसके ऊपर इसको डिपेंड करेगा. ठीक है. चलिए, कॉस्ट ऑडिट के बारे में बात कर लेते हैं. कॉस्ट ऑडिट जो है क्या है, ऑडिट प्रोसेस फॉर वेरीफाइंग द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्शन ऑफ एनी आर्टिकल. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट्स. आपका सीए इंटरमीडिएट में एक पेपर है कॉस्टिंग मैनेजमेंट, उसमें ये काफी डिटेल में कवर होता है. 148 जो सेक्शन है आपका कंपनीज एक्ट का, वो कहता है कि कॉस्ट ऑडिट जो है वो इन एडिशन टू द ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 143, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री है. As per section 148, SAG may by order specify audit of items of cost in respect of certain companies. Certain companies कौन बता सकता है भैया, सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकता है. ठीक है. कॉस्ट रिकॉर्ड किस किस को मेंटेन करना है, सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं, है ना, एप्लीकेबिलिटी फॉर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड. तो ये कहता है भाई कि कंपनीज engaged in production of goods or providing services जिनका टर्नओवर सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज से 35 करोड़ या ज्यादा है during the immediately preceding financial year to include cost record in their books of account. ठीक है. These companies include foreign companies. फॉरेन कंपनीज कहाँ पे डिफाइन किया है, 242 में, राइट, सेक्शन 2 सब प्लस सब सेक्शन 42 में. अच्छा, माइक्रो एंटरप्राइज है या स्मॉल एंटरप्राइज है तो उसको हम लोगों ने बाहर रखा हुआ है. ठीक है, यहां से. ठीक है. कॉस्ट रिकॉर्ड में क्या बात कर रहा है, रूल 5 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड इन ऑडिट में एवरी कंपनी जो है ऑल यूनिट एंड ब्रांच देयरऑफ शेल इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कॉस्ट रिकॉर्ड. कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे रहेगा, फॉर्म क्या है, फॉर्म CRA1. ठीक है, ध्यान रखिएगा फॉर्म का नाम. अच्छा, कॉस्ट के रिकॉर्ड्स को रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करना है
ताकि ये फैसिलिटेट करें क्या, कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, cost of sales and margin for each of its product and activities for every financial year on monthly or quarterly or half yearly or annual basis। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि अपने को किस पे मेंटेन करना चाहते हैं। ऊपर बात किया था एप्लीकेबिलिटी का, तो यहाँ पे उसी की बात का क्राइटेरिया डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, अगर आप देखें क्लासेस ऑफ कंपनी स्पेसिफिक अंडर आइटम है विच इज रेगुलेटेड सेक्टर, तो यहाँ पे लिस्ट एक प्रोवाइड की हुई है। अगर आप देखेंगे तो ये जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट जो है, इसमें दो लिस्ट है, रेगुलेटेड सेक्टर की और नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, है ना। तो ये उन लिस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, और उनका क्राइटेरिया यहाँ पे डाला हुआ है। कॉस्ट राइटर कौन हो सकता है भाई? कॉस्ट राइटर हो सकता है कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू, है ना। और रेम्यूनरेशन as may be determined by the member of such manner as may be prescribed, है ना। अच्छा, 139 में जो ऑडिटर बनाया गया है ना, वो कॉस्ट के रिकॉर्ड की ऑडिट नहीं करेगा। ठीक है, इट नीड्स टू बी डिफरेंट पर्सन। अच्छा, जो भी ऑडिट करेगा वो क्या करेगा, वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करेगा, है ना। CW है जो कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट एक्ट 1959 है, उसके थ्रू कंप्लाई करेगा। अपॉइंटमेंट कौन करेगा कॉस्ट ऑडिटर का, है ना। अच्छा, कंपनीज जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे 180 डेज ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, है ना। अच्छा, रिटर्न कंसेंट चाहिए किसका, कॉस्ट ऑडिटर का, और सर्टिफिकेट चाहिए उससे किस चीज का, कि वो क्वालिफाई करता है, डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं आता है। और ये 4-5 चीजें उन्होंने बताई सर्टिफिकेट में क्या क्या चाहिए, कि नॉट डिस्क्वालिफाई फॉर अपॉइंटमेंट, है ना। एज द केस में भी सेटिस्फाई द क्राइटेरिया इन सेक्शन 141 जो बताया था रिलेटिव्स का, राइट, एंड द अदर पार्ट क्राइटेरिया जो था सिक्योरिटी होल्डिंग का, वो सारी बातें। अच्छा, द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स लेट डाउन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट, जो लिमिट्स बताई हैं 20 लिमिट का बात हुआ था, या अदर एक्ट्स में जो बात किया है। Proceeding against the cost auditor audit firm or any partner of the audit firm pending with respect to professional matter of conduct, है ना, as disclosed in the certificate is true and correct। so, यहाँ पे उसके ऊपर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस नहीं चलना चाहिए। तो ये सारी बातें वो बताएगा। कॉस्ट ऑडिटर को अगर निकालना है तो, रिमूवल ऑफ कॉस्ट ऑडिटर करना है तो क्या करेंगे, कॉस्ट ऑडिटर को रिमूव करना है तो एक्सपायरी के पहले तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना होगा हमें, किस बात के लिए, कि भाई उसके रीजंस क्या है रिमूवल के, है ना, एंड देन ही शुड बी एबल टू क्लेरिफाई। अच्छा, फॉर्म CRA 2 को भरना होगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, किस लिए, इंटीमेट करना पड़ेगा कि मैं अपॉइंटमेंट अनदर कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है, और बोर्ड रेजोल्यूशन को इंक्लोज करना पड़ेगा। ठीक है जी। कैजुअल वैकेंसी अगर हो जाती है तो, कैजुअल वैकेंसी क्या है बताइए, रिजाइन कर दिया है, रिटायर हो रहा है, या डिस्क्वालीफाई हो गया आफ्टर अपॉइंटमेंट, सो डेथ हो गई है, शेल बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज ऑफ द अकरेंस ऑफ सच वैकेंसी। और किसको इंटीमेट करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करेंगे। फॉर्म नंबर CRA 2 कितने दिनों में करेंगे, विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पैसा, रेम्यूनरेशन, जो चीजें ऊपर हमने बात की सिमिलर वे में, बोर्ड शेल अपॉइंट एन इंडिविजुअल हु इज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, है ना, और उसका जो रेम्यूनरेशन है वो ऑडिट कमेटी जो ऊपर डिसाइड हुआ था या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड कर सकते हैं, और रेटिफाइड कौन करेगा, शेयर होल्डर्स करेंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, cost auditor appointed under section, it may shall be duty of the company to give all assistance with the cost auditor। तो सेम जो क्राइटेरिया हमने ऊपर लेके आए हमारे ऑडिटर्स के लिए, एप्लीकेबल टू द ऑडिटर के लिए जो क्राइटेरिया लेके आए हैं, वही क्राइटेरिया जो है इनके लिए भी हमें चलाना पड़ेगा। चलिए, जंप कर गया है थोड़ा सा, मुझे वापस वहां पे आना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला टॉपिक थोड़ा समझ में आया होगा। एंड हम आ गए हैं सेक्शन 14। लेट मी प्लीज स्क्रॉल थ्रू। हाँ जी, ये प्राइवेट कंपनी हो गया था हमारा।
ये हम बात कर चुके हैं, ये भी हम बात कर चुके हैं, ये हमने बात किया कि आप पढ़ लेंगे इसको। कॉस्ट ऑडिट की बात हो गई है, रिमूवल की बात की, जो वैकेंसी की बात हो गई, रेमुनरेशन की बात हो गई है, क्वालिफिकेशन की बात हो गई है। ठीक है, तो जो ऑडिटर के क्राइटेरियाज हैं सेम यहाँ पे सबमिशन करना है कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का। किसको करेंगे? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? फॉर्म CRA 3 में भेजेंगे, है ना, विद इन 180 डे पीरियड में। कहाँ से? फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से भेजेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा क्या करेंगे हम? सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बताएंगे? CRA 4 में बताएंगे, है ना, और उसको क्या बोलेंगे? XBRL एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में फॉर्म भरा जाएगा, है ना। अच्छा, along with the fees as specified in the company's registration offices and fees rules 2014। कितने दिनों में? within 30 days from the date of receipt of a copy of the cost audit report prepared। कि हमारे पास जब आया है within 30 days में उस रिपोर्ट को हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट करना है CRA 4 में। ठीक है, अच्छा इसको आगे बात करेंगे। तो अगर भाई जो है ड्यूटी टू रिपोर्ट है फ्रॉड, जैसा हमने 143(12) में पढ़ा था, है ना, सेम यहाँ पे मीटर एप्लीकेबल रहेगा। क्या? जो जो भी प्रोविजंस 143(12) में ऑडिटर के लिए एप्लीकेबल है, सेम ही यहाँ पे एप्लीकेबल है आपके कॉस्ट ऑडिटर के केस में भी। ठीक है, किस किस केस में एप्लीकेबल नहीं रहेगा? कॉस्ट ऑडिट रूल जो है सर्टेन केसेस में एग्जम्प्टेड है। कहाँ पे? रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज exceeds 75% ऑफ इट्स टोटल रेवेन्यू, है ना। द कंपनी इज ऑपरेटिंग फ्रॉम ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना। engaged in generation of the electricity for captive consumption through captive generating plant। तो इस केस में ये कॉस्ट ऑडिट का रूल एप्लीकेबल नहीं रहेगा। पेनाल्टी क्लॉज क्या है भाई? पेनाल्टी क्लॉज ये है कि इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शेल बी पनिशेबल। कैसे? 147 में जो बताया गया। 147 में क्या बताया है? ये नीचे लिखा हुआ है, पनिशमेंट फॉर द नॉन कंप्लाइंस। अभी ये उसी टॉपिक पे आ रहा है ना। कॉस्ट ऑडिटर भी जो डिफॉल्ट में है, तो कंपनी का ऑफिसर भी डिफॉल्ट में है, या कंपनी डिफॉल्ट में है, कॉस्ट ऑडिटर डिफॉल्ट में है, उन सबको ये वाली पेनाल्टीज यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। कौन कौन सी? 139 से 146 के जो सेक्शंस हैं बोथ इंक्लूसिव, है ना। अगर इसमें से कुछ भी कंट्रावीन्ड होता है, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज बट विच में एक्सटेंड अप टू 5 लाख रुपीज। कहाँ से? 25,000 से 5 लाख तक जा सकता है। अच्छा, कंपनी का जो भी आदमी डिफॉल्ट में है, कंपनी एवरी कंपनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी हु इज इन डिफॉल्ट शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट। कहाँ तक जा सकता है? विच में बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर, या फाइन which shall not be less than 10,000 rupees, है ना, but which may extend up to 1 lakh rupees are with both। जेल भी हो सकती है 1 साल की, और 1 लाख रुपीस का जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका है। कॉस्ट ऑडिटर के केस में या ऑडिटर के केस में, इफ ऑडिटर ऑफ द कंपनी कंट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन 139 से 143, 144 या 145, तो ऑडिटर भी पनिशेबल होगा। उसके लिए क्या है भैया? उसके लिए 25,000 और अप टू 5 lakhs, है ना, या फिर 4 times ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, जो भी कम होगा विच एवर इज लेस, उसके साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। ठीक है, विच एवर इज लेस अमंग द 3। कौन से 3? 25,000 से 5 लाख तक की लिमिट एक है, या फिर 4 times ऑफ द रेम्यूनरेशन, दो में से जो भी कम होगा उसको यहाँ पे एप्लीकेबल करना है। अच्छा, किसी ने अगर नोइंगली किया है तो गलती से अगर गलती हो गई तो काम चल जाएगा, मगर अगर जानबूझ के किसी ने गलती किया है, राइट, नोइंगली अगर कोई गलती किया है, विलफुली अगर कोई गलती किया है, इंटेंशन टू डिसीव द कंपनी ना, तो उस केस में क्या होगा? पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और विद ए फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 50,000। डबल हो गया भाई साहब, और 5 टाइम्स हो गया, अप टू 25 लाख रुपीज। तो 5 लाख था ना पहले, 25,000 से 5 लाख, अब वो क्या हो गया है? 50,000 से 25 लाख हो गया है। और रेम्यूनरेशन का जो 4 टाइम था उधर, उसमें अब 8 टाइम्स कर दिया है उसको,
है ना। अगेन यहाँ भी अन्याय नहीं किया उसके साथ, विच एवर इज लेस रख दिया है उसको। तो इस चीज से भी वो जो है अपना जिक्र लेके काम आगे बढ़ा सकता है। ये पेनाल्टी का ध्यान रखिएगा, आप कई बार आ जाती हैं स्पेसिफिक्स में, तो उस केस में आप इसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। कई बार केस स्टडीज बन जाती है पेनाल्टीज के ऊपर भी। पेनाल्टीज को बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, इसका टेक्निक वही है, आपको पेनाल्टीज के जोन बना लीजिए। 10,000 से 20,000 वाली कितनी है, 1,000 से 10,000 वाली कितनी है, 25,000 से 50,000 वाली कितनी है, उनके सेक्शन नंबर्स मैप कर दीजिए। एंड दैट्स हाउ यू हैव टू डू दैट। इम्प्रिजनमेंट है तो टिक मार दीजिए, और टिक मार के उनकी भी रेंज बना दीजिए कि 2 साल वाली जेल कितने में है, 1 साल वाली जेल कितने सेक्शंस में है। सो दैट्स हाउ यू कैन डू दैट। उसको ब्रैकेटिंग ग्रुपिंग अप्रोच बोलते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू टू क्विकली रिमेंबर ऑल ऑफ दीज पेनाल्टी क्लॉजेस। ठीक है। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आई विल ब्रिंग ए वीडियो ऑन द मेमोरी टेक्निक्स फॉर रिमेम्बरिंग द सेक्शन नंबर। अगर वक्त परमिट किया तो मैं जो है ये पेनाल्टी के ऊपर भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा, तो जिससे आपका ये इशू भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए भाई साहब, इसी के साथ हमारा जो है रिवीजन फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आया होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। क्विकली हमने इसको समराइज या रिवाइज करने की कोशिश की है। प्लीज टेक ए नोट कि ये आपकी रेगुलर स्टडी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको ये क्विक एक रिवीजन हम पूरे चैप्टर का फास्ट ट्रैक मोड पे करवा देते हैं, जिससे कि आपको रिकॉल करने में आसानी हो, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, और उसके बेसिस पे आप जो है इसको क्विकली देख पाए। मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो है वो टॉपिक्स टिपिकली 1.5 से 2 घंटे के अंदर रहें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों के ऊपर स्पेंड करने की कोशिश ना करनी पड़े। बट ये एक्सक्लूजन नहीं है आपकी रेगुलर प्रैक्टिस का, आपको अपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आप और भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जर्नी है, आपको सीखना है, सीखते जाना है, और ये जो सारा करिकुलम है ये बहुत ही अच्छी तरह से टाइटली निटेड है। तो आगे भी हम ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे। मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि आप अगला टॉपिक कौन सा देखना चाहते हैं, और अगर आपको स्पेसिफिक कोई इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है इन वीडियोस में, या स्पेसिफिक पैटर्न आप चाहते हैं, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम अपने आने वाले अगले वीडियोस में उसका शुमार कर सकें, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आशाओं पे खरे उतरेंगे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, अप्रिशिएट इट। बाय बाय।